important class about noun usage and consider it as a very important where the nouns are used in singular and plural, and I will clear your doubt and confusion about these words. So the usage of noun. So nouns always singular. Uncountable nouns like these are usually singular. Abstract nouns. So you know abstract nouns is which you feel it or you understand it in the mind, where mind is related to certain words, that is known as abstract noun, like advice, death, honesty, music, beauty, depth, hope, poverty, bravery, fear. Fear means bhai, bravery means courage, and information, pride, courage, greatness, knowledge, truth, darkness, help, mercy, daya, wisdom. Material nouns, where this is considered as an uncountable noun, where you cannot count, like bread, fog, कुहासा जैसे हिंदी में कहते हैं, butter, gin, oil, soup, cement, glass, paper, sugar, chalk, gold, petrol, tea, cheese, ice, powder, water, coal, ink, salt, wine, coffee, iron, sand, wood, cream, jam, sauce, and wool. And dirt, dust, धूल, मिट्टी, jelly, silk, floor, lime, silver. तो ये सब हम अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं. नाउ मिसलेनियस लाइक बैगेज. बैगेज क्या है कि फर्नीचर. अब फर्नीचर क्या है, वो मटेरियल नाउन भी है बट पूरा नहीं है ना, उसको हम फर्नीचर को नहीं कह सकते मटेरियल नाउन, तो मिसलेनियस में यूज करते हैं. लगेज, सीनरी, क्लोथिंग, होमवर्क, मशीनरी, स्टेशनरी, कटलरी, हाउस वर्क, पोएट्री, ट्रैफिक, drapery, imagery, rubbish, weather. So now note this, that nouns like these are not put into plural form. All these which I have told you just now cannot be put into plural form. Just I don't like modern poetry, not poetries. So poetry is always in the same form, poetry. You cannot make it its plural form. Sun, suns, cup, cups. But poetry will be poetry only. We saw a lot of scenery in Nepal, not sceneries. So to make into number, it is always in a plural form. So a lot of is many, you have seen. Okay, he bought a lot of old machinery, not machineries. She has not done her homework, not homeworks. These nouns don't take a and an. So this is great poetry, not poetries. He eats bread every day, not a bread. I want ink, not an ink. Here poetry, every day, ink, you cannot write a or an before that word. So not he gave me an advice. Okay, you can write he gave me advice, but you cannot write he gave me an advice. You can say he gave me one piece of advice. He gave me several pieces of advice. So several means many, so pieces it became PIECES, you have to add, make it plural. 2 pieces of advice, 10 pieces of advice. Okay, so same way you can say he gave me help, but you can't say he gave me a help. As well as this ADVISE, this is used as the verb. So he advises the students under his tutelage. Under his tutelage means advise किया, मतलब उसने सलाह दिया अपने स्टूडेंट को अंडर हिज ट्यूटलेज. तो अंडर हिज ट्यूटलेज, ट्यूटलेज का मतलब क्या होता है, अंडर हिज गार्जियनशिप. गार्जियन क्या होता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियली, फिजिकली एंड एकेडमिकली. तो ये यहाँ पे सलाह की बात हो रही है. एडवाइस द वर्ब, दे एडवाइज्ड मी अबाउट हाउ टू अप्लाई टू कॉलेज. तो दे एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि कैसे अप्लाई करें कॉलेज के लिए. So such nouns are often modified by expressions like these to denote amount or quantity. So which 3 nouns I have told you now, how they are being modified to denote amount or quantity. So we have to add a lot of, a plenty of, a piece of plus noun. So like gold is an uncountable noun. She has a, so to make it a quantity, so we say she has a lot of gold. I want a loaf of bread. So you cannot write breads. So I want a loaf of bread. So notice here that how a piece plus of plus noun is used with uncountable nouns. Like a piece of, a bit of. So a piece of advice I can say.
So he has given me a bit of advice, a piece of advice. A liter of petrol, a gallon of petrol. A gallon means 22 liter of petrol. A piece of cake, a slice of cake. But in case of bread, we have to say a loaf of bread or a piece of bread. Same information, we can say a piece of information. तो बहुत सारे information है, हाँ, जानकारियां, तो उसका छन छन जो है उसको कहते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अ केक ऑफ सोप, जो साबुन होता है ना उसको क्या कहते हैं, अ केक ऑफ सोप. और अ बार ऑफ सोप, कहते हैं ना बार देना रेन का. अ पीस ऑफ लैंड कहते हैं, बहुत बड़ा लैंड कहेंगे अ पीस ऑफ, एक जमीन का टुकड़ा. अ स्ट्रिप ऑफ लैंड भी कहते हैं उसे. अ बार ऑफ चॉकलेट कहते हैं, आपने देखा होगा कभी वो बार ऐसे लंबे ऐसे बने रहते हैं, तो अ बार कहते हैं बार ऑफ चॉकलेट. A piece of news, a bit of news, an item of furniture. अब आते हैं, uncountable nouns can be made plural to denote a kind of or a unit of. तो हम जो है uncountable noun को plural जब बनाते हैं तो हम क्या बताना चाहते हैं कि वो it's a kind of or unit of, like ये butters, cheeses. तो यहाँ पे s लगा हुआ है. We have to use in this form. Oils, paints, kindnesses, truths. So how this is? So how this can be made plural to denote? See, she does not listen to the home truths about herself. So truths, home truths, घर की जो सच्चाइयां हैं तो वो सुनना नहीं चाहती है. Two coffees please. हम किसी दुकान में कहते हैं ना, तो टू कॉफीज प्लीज मतलब वो 2 कप, उसको ये अपने आप की समझ है, ठीक है. द पोर्चुगीज वाइन्स आर एक्सीलेंट. तो पोर्चुगीज जो कंट्री है उसकी जो वाइन है वो क्या है, एक्सीलेंट है, श्रेष्ठ है. फ्रांस इज वेल नोन फॉर इट्स चीजेस. तो ये जो वर्ड्स मैंने बताया आपको, दिस इज प्लूरल फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं. नाउन्स ऑलवेज प्लूरल. अब यहाँ पे कैसे कैसे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. लाइक नाउन प्लस एस हम यूज करते हैं. एंड इन सेंस ऑल्सो, और उसका सेंस भी वही होता है, प्लूरल होता है, ये नहीं सिंगुलर होता है. जैसे गारमेंट्स, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, हमेशा 2 रहेगा उसका, 2 ऐसे रहेगा. पैंट, तो गारमेंट्स एस लगाएंगे हमेशा, ऑलवेज. ये प्लूरल फॉर्म में भी रहेगा और सेंस में भी ये प्लूरल ही रहेगा. ब्लूमर्स, तो मैंने फोटो दिखाया, बच्चों का जो पैंट होता है ना उनको ब्लूमर्स कहते हैं. फिर जीन्स, फिर पैंट्स, पैंटलून्स, पैजामाज, शॉर्ट्स जो हाफ पैंट होते हैं ना उनको शॉर्ट्स कहते हैं. ट्राउजर्स फुल पैंट होते हैं. फिर टाइट्स, ब्रीचेस जांघिया होती हैं, तो उसमें भी 2 रहेंगे. फिर ब्रेसेस जो पहनते हैं ना, यहाँ पे आप देखे होंगे अक्सर लोग, ये मैंने फोटो भी दिया है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिप्स होते हैं ना ऐसे जो पैंट से जाके लगते हैं, उनको ब्रेसेस, हमेशा पेयर में रहेंगे, तो एस लगा रहेगा. फिर फ्लैनल्स जो है वो आप देखोगे कभी कभी शर्ट ना थोड़े से सॉफ्ट टाइप के होंगे. इज सॉफ्ट वोवन फैब्रिक मेड ऑफ वुल, कॉटन और सिंथेटिक फाइबर. तो ये ऊन से और कॉटन से और सिंथेटिक फाइबर से बने रहते हैं. तो ये कि एक ही कपड़ा यूज नहीं होता, वो 2-3 मटेरियल यूज होते हैं, इस वजह से उसको फ्लैनल्स कहते हैं. फिर सस्पेंडर्स, तो जो स्ट्रिप लगता है ना इसका, ये जो वो मैंने फोटो दिया है, सस्पेंडर्स क्या होते हैं, ये भी 2 होते हैं. तो 1 of 2 सपोर्टिंग बैंड्स, 1 अक्रॉस द शोल्डर्स टू सपोर्ट ट्राउजर्स. तो ट्राउजर्स को सपोर्ट करता है, पैंट को सपोर्ट करता है, या स्कर्ट को. or belt usually used in plural or often with pair. So they are in tennis flannels. She is in tight blue jeans. तो हमेशा देखिए एस लग रहा है. So he bought a pair of tennis shorts. एस लगा है वहां से, तो जिसको सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं. तो these are the garments. Now tools and instruments, तो जो औजार हम यूज करते हैं ना वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. जैसे ये बेलोज, मैंने यहाँ फोटो दिखाया, देखिए ध्यान से. बेलोज, अ डिवाइस विथ एन एयर बैग दैट एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ एयर व्हेन स्क्वीज टुगेदर विथ 2 हैंडल्स यूज फॉर ब्लोइंग एयर इनटू अ फायर. तो जो है खोले ऐसे हवा लेगा, ऐसे करके ये ऐसे पीछे से ऐसे रहता है, इसको दबाइएगा तो हवा निकलेगा, तो फिर ऐसे किए तो हवा लेगा, फिर दबाइए तो हवा छोड़ेगा. तो ये क्या था, पहले सिस्टम क्या था कि जो कभी आपने देखा होगा पुराने गांव में क्या होता है कि वो जो हवा फूंक मारते हैं वो, और जिससे वो गर्म होता है, आयरन का जब वो काम करते हैं, जलाना होता है ना, तो वो ब्लो करते हैं, वो हीट अचानक प्रोड्यूस होता है कोयले में एंड ऑल, तो बेलोस कहते हैं उसको.
सेपरेबल नहीं होता, वो जुड़ा ही रहेगा। हाँ, फिर बाइनोकुलर्स हुआ, फिर फिटर्स, टीयर्स मीन्स बिग सीजर्स, स्पेक्टिकल्स अगेन टू स्पेक्टिकल्स, देन टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा, okay, and tweezers also chimti. Chimta means big size, and chimti small size, so which is used to pluck this eyebrows. Now here the prisoner is in fitters. So fitters again, bedi or hatkadi, like you have no this, you have seen, ये जो बेड़ियां लगी रहती है ना, हथकड़ी अपराधी का लगाते हैं, तो हमेशा दो होता है वो, तो वो फिटर्स कहते हैं, FETTERS, हमेशा पेयर में होता है। तो ही कांट सी विदाउट ग्लासेस, ही कांट सी विदाउट ग्लासेस, हमेशा पेयर में होगा। सो मिसलेनियस वर्ड्स जो है कुछ लाइक ALMS, अल्स, वो जो भिक्षा देते हैं ना, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, गट्स, सेविंग्स, अमेंड्स, कंटेंट्स, लुक्स, शेविंग्स, अनल्स, कर्ड्स, ये कर्ड वही दही है, ओट्स, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो हैं, हमेशा वो देखिएगा एक नहीं होगी उसमें, दो, 1 2 4 5 10 ऐसे स्टेयर्स। आर्चीव्स, जो पुराना आप देखते हैं ना, गूगल में करते हैं, आपके आर्चीव्स, ओल्ड आर्चीव्स आप निकालते हैं। ड्रॉपिंग्स, ऑड्स, सराउंडिंग्स, ये हमेशा प्लूरल इसका दिखा रहा है आपको। आर्म्स, ड्रग्स, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर, शहर का आउटस्कर्ट, शहर का बाहरी इलाका। टीन्स, युवा जो होते हैं। एरियर्स, अर्निंग्स, प्रेमाइसेस, थैंक्स, ऑस्पिसेस, ईव्स, जो छज्जा होता है, ईव्स का मतलब जो आप देखते हैं ना, जो छज्जा होता है घर में, तो वो थोड़ा बाहर निकला रहता है, तो उससे जो है धूप नहीं आती है, धूप को रोकता है, तो उसे कहते हैं ईव्स। देन रिगार्ड्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, फंड्स जो है उसको मानो मनी। रिस्पेक्ट्स, वेजेस, क्लोथ्स, गुड्स, जो वेयर हाउस जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, ये आइटम्स। रिचेस, कंडोलेंसेस, श्रद्धांजलि जो होता है ना, कंडोलेंसेस। ग्रीन्स, जब हम ग्रीन्स बोलते हैं तो इसका मतलब हम सब्जियों को बोल रहे हैं। ट्रूप्स, जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं, मतलब जो सेना होती है उनको ट्रूप्स, एक तो होती नहीं है सेना, मतलब एक से ज्यादा ही रहेंगी तो वो ट्रूप्स। सो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कर्ड्स, उसको जो दही जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो नॉट CORD, हमेशा S लगा रहेगा। आई सेंट हिम अ लेटर ऑफ थैंक्स, मैंने उन्हें जो है उसे एक धन्यवाद का लेटर दिया, मतलब एक पत्र दिया संबोधित करते हुए, तो वो थैंक्स होगा वहां पे। प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्डोलेंसेस, कृपया मेरी जो है श्रद्धांजलि आप स्वीकार करें। तो कंडोलेंसेस, नॉट कॉन्डोलेंस। शी इज नॉट लूजिंग हर लुक्स, तो वो अपना रूप जो है खोते जा रही है, तो नॉट लुक। सो नोट वेजेस, वेजेस जो होता है वो तनख्वाह को कहते हैं, तो वेजेस इज यूजुअली प्लूरल एक्सेप्ट इन फ्रेजेस लाइक दीज, तो वेजेस को हमेशा हम प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगह जहां फ्रेजेस हैं वहां पे हम इसको, जैसे अ लिविंग वेज, अ वेज इंक्रीज, तो ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। हेड्स एंड टेल्स, तो आप जानते हैं ना वो जो सिक्का होता है, हेड्स और टेल्स वहां कहते हैं उस पे, तो हेड्स एंड टेल्स ऑलवेज एंड्स इन एस इन ईडियम्स लाइक दिस, तो ये जो ईडियम्स जो है किद्वंती हैं, जैसे हेड्स और टेल्स, नॉट हेड और टेल। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, तो हमेशा हम हेड्स और टेल्स ऐसे ही लगाएंगे उसमें, कंफर्म है। देन पेन्स, जो दर्द है वो हमेशा एस लगा रहेगा, पेन्स ऑलवेज एंड्स इन एस इन ईडियम्स लाइक दिस, बी एट पेन्स, टेक पेन्स, हम कहते हैं ना दर्द लो, टेक पेन्स। स्पेयर नो पेन्स, कोई भी जो दर्द है उसको छोड़ो नहीं, मतलब तकलीफ को जो है घबराओ नहीं। स्पेयर नो पेन्स, आई विल स्पेयर नो पेन्स टू हेल्प हर, तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं सारी तकलीफें लूंगा, पेन्स लूंगा उसको मदद करने के लिए, नॉट पेन। वैसे ही ब्रेन्स, दी ब्रेन्स मीनिंग द क्लेवरेस्ट पर्सन इन अ ग्रुप, कहते हैं दी ब्रेन्स का मतलब यह है कि वो जो ग्रुप है उसमें वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान दिमागी व्यक्ति है। सो द ब्रेन्स इज प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस, बट वो सिंगुलर इन सेंस रहता था। ही इज द ब्रेन्स ऑफ द विलेज काउंसिल, तो जो विलेज की जो समितियां हैं उस, ही इज द ब्रेन्स, मतलब वो उनमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि
मत्ता वाला मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। उन सारे जो समितियां हैं उनमें जितने भी लोग हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति यही है। तो ही इज द ब्रेन्स ऑफ द विलेज काउंसिल। शी इज दी, तो इसमें आप देख रहे हैं ना उसका फॉर्म एस लगा है तो प्लूरल फॉर्म है, जो उसका ढांचा है वो एस लगा हुआ था, इससे वो प्लूरल दिखता तो है बट एक्चुअल में वो सिंगुलर बताता है। तो शी इज द ब्रेन्स बिहाइंड द रॉबरी, तो वो जो उसी का दिमाग लगा ये जो रॉबरी करने में, मतलब रॉबरी जैसे घर में घुस के जो चोरी डकैती करते हैं ना वो उनको कहते हैं। ब्रेन्स नॉट ब्रेन इज यूज्ड इन idioms लाइक दिस, लाइक कजल वंस ब्रेन्स, ब्लो वंस ब्रेन्स आउट, ये सब idioms हैं। लेडीज, जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, these nouns are always in plural, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होगा when they are used in terms of address। जब आप एड्रेस करते हैं ना पब्लिक तो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन हैव पेशेंस, आप धैर्य रखिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम एड्रेस करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट्स लिव इन पीस, शांति से रहा जाए। तो जब भी हम एड्रेस करते हैं पब्लिक को तो वहां पे क्या यूज करते हैं, हम हमेशा एस लगाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटल, प्लूरल रहेगा हमेशा ऑलवेज। तो लेडीज, लेकिन एक जगह जैसे लेडीज और जेंट्स प्लूरल जब हम इसका फॉर्म रहता है तो बट ये सिंगुलर इन सेंस होता है कहाँ पे, जब एक टॉयलेट में यूज करते हैं। जब भी आप जाते होंगे ना एयरपोर्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है दिस इज दी लेडीज, तो एक लेडी का फोटो बना रहेगा, आधा चेहरा ऐसे, तो दिस इज दी लेडीज, मतलब वो टॉयलेट के संदर्भ में यूज किया जाता है बट इट इज अ सिंगुलर इन फॉर्म, दिस इज दी जेंट्स। मीन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल व्हेन इट मीन्स मेथड और प्रोसेस। तो जब वो प्रक्रिया या तरीका को बताता है तो वो दोनों तरीके से हम इसको यूज करते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल के उसमें। मतलब इसका जो फॉर्म तो वही रहेगा मीन्स, लेकिन इसके मतलब अलग अलग, कभी एक जगह एक सेंटेंस में वो सिंगुलर कहलाए समझ में आएगा, एक में वो प्लूरल होगा। तो जैसे मैं बताता हूँ, वेल्थ इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, तो जो वेल्थ है वो क्या है, वो अंतिम पड़ाव है जिंदगी का, प्रोसेस है ये, मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म तो है लेकिन इसका सेंस सिंगुलर है। ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड टू एसरटेन द ट्रूथ, तो कहते हैं ना कि सारे आप तरीके प्रोसेस को आप अपनाते हैं एक सच्चाई को जानने के लिए। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो सारे तरीके जो है अपनाते हैं, ट्राई करते हैं सच को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म तो है लेकिन इसकी प्लूरल इसका सेंस भी हो गया, तो हैव आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, तो ये सारे पॉसिबल मीन्स बहुत सारे मतलब तरीके ट्राई किए गए इन महानुभाव द्वारा सत्य की खोज के में। So, but when it means more money or resources, it always plural। लेकिन जब हम means का जो तात्पर्य है वो रिसोर्स संसाधन या रुपए पैसे पर कहते हैं, then it is always plural। Like my means are, तो my means are limited, तो मेरा जो जैसे मेरी जो संसाधन है, जो मेरी रुपए पैसे में जो मेरी ताकत है वो लिमिटेड है, वो सीमित है, हम कह रहे हैं। तो हम किसको तात्पर्य बताना, ये अपने संसाधन या अपने रुपए पैसे को बता रहा हूँ। माई मीन्स आर लिमिटेड। सो वेयर अबाउट्स, सो वेयर अबाउट्स मीन्स अब तुम्हारा जैसे कोई पता नहीं चल रहा है तो इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वेयर अबाउट्स। सो इट कैन बी यूज्ड विद अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब ऑल्दो इट इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, इसका हमेशा प्लूरल रहेगा वेयर अबाउट्स, ओके, एस लगा रहेगा हमेशा, नॉट वेयर अबाउट। हिज प्रेजेंट वेयर अबाउट इज नॉट नोन टू एनीबडी, इसका जो वर्तमान ठिकाना है ये किसी को पता नहीं है, ये कह रहे हैं। तो इसका हो गया हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू एनीबडी, आर भी हम लगा देते हैं कि उस अभी वो उसके बहुत सारे ठिकाने हैं, तो जब हिज प्रेजेंट वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू एनीबडी, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे सारे ठिकाने हैं, तब हमको वहां पे आर लग जाता है बट फॉर्म वही रहेगा, वे अब एस लगा रहेगा। नाउ पैसा एंड पैसे, इंडियन कॉइन के बारे में, तो सिंगुलर फॉर्म इज पैसा एंड द प्लूरल फॉर्म इज पैसे। So I gave him 1 paisa and I gave him 2 paise. Noun singular in form but plural in sense. So now form is singular but its sense is plural. So cattle का मतलब बहुत सारे जानवर जो डोमेस्टिक होते हैं ना उनको कैटल कहते हैं।
कैटल के फॉर्म में आते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, दीज आर ऑल कैटल्स। तो कैवेलरी, तो कैवेलरी का मतलब हो गया जो घुड़सवार सैनिक जो होते हैं ना, उनको, तो बहुत सारे हो गए कैवेलरी, बट फॉर्म उसका सिंगुलर है, नो एस इज देयर। क्लर्गी आर फॉर्मल लीडर्स विद इन एस्टैब्लिश्ड रिलीजन। तो क्लर्गी जैसे मौलवी हो गया इस्लाम धर्म में, पुजारी हो गया हिंदू धर्म में, फादर हो गए आपके क्रिश्चियन धर्म में, ग्रंथी हो गए आपके सिख धर्म में। तो इनको ये क्लर्गी हो गए। इसका फॉर्म क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसकी मीनिंग जो सेंस है वो प्लूरल है। जेंट्री, तो कहते हैं ना वो जेंट्री जो उस एरिया की अच्छी नहीं है, मतलब क्या हो गया वहां पे जेंट्री, जब हम कहते हैं कि जेंट्री ऑफ मॉडल टाउन इज नॉट गुड, तो वो मॉडल टाउन की जो जेंट्री वो अच्छी नहीं है। फिर वहां बहुत सारे जेंट्री को बता रहा, लोगों को बता रहा है। पीपल, फॉर्म इसका देखिए एस नहीं लगा, बट द सेंस इज प्लूरल, मैनी पर्सन। पुलिस, अगेन इट इज सेंस इज प्लूरल। वर्मिन, सेंस इज प्लूरल। नो सेंस इज प्लूरल। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जो कैटल है मतलब जैसे जानवर जो हैं वो खेत में चर रहे हैं। द पुलिस आर ऑन पेट्रोल नाउ। The function was attended by the gentry of the town. So gentry of the town हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये प्लूरल इसका जो है सेंस है। ये फंक्शन जो अटेंड किया गया टाउन के जो लोग हैं उन्होंने अटेंड किया। पावर टू द पीपल, नोट दिस, दीज कैटल्स आर वीक, ये रॉन्ग है, कैटल्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। और दी जेंट्रीज ऑफ द टाउन आर प्रेजेंट हियर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जेंट्रीज नहीं होगा, जेंट्री होगा। The gentry of the town are present here. This is a correct sentence. Now, people, peoples and persons. So, people and as a plural noun means persons only. Okay, so don't get, people and persons are almost same. So, in formal sense, we use people. So, the Americans are an optimistic people, meaning that optimism is a characteristic of the people of the group as a whole. तो वो अमेरिकन लोग कि जो चरित्र को चित्रार्थ करता है कि वो पॉजिटिव लोग हैं। तो अमेरिकन पॉजिटिव रहते हैं वो लाइफ में जो है। तो अमेरिकन आर एन ऑप्टिमिस्टिक पीपल। जैसे वो आप सुनते होंगे ना, वहां पे देखिए वो बिल गेट्स हैं, वो कॉलेज नहीं अटेंड किए तो छोड़ दिया उन्होंने, और भी बहुत सारे हैं, स्टीव जॉब्स हैं। तो वहां पे कैसा है कि जो वहां का जो समाज है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो वो खोज कर देते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, हिंदुस्तानी समाज, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मतलब अगर हमारा एक क्लास चला जाए या किसी वजह से तो हम बहुत निराश हो जाते हैं लाइफ में। तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक। हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो वो निराश हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। मैनी पीपल आर गोइंग टू द कंसर्ट, तो एक समारोह में जो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, नॉट इज। तो पीपल के हमेशा ये जो पीपल सेंस प्लूरल होगा तो आर ही लगेगा। Thousands of people watched the parade. Most people like ice cream. So thousands of people watched the parade and most people like ice cream. ये सब plural sense है. So people generally used as a plural but can be used as a singular when referring to an entire population or society. But ये singular कब कहते हैं, जब हम entire population को या सोसाइटी को जब हम रिफर करते हैं, तो हम बताना चाहते हैं। सो द लोकल ट्राइब वाज एन इंडस्ट्रियस पीपल। तो हम क्या बता रहे हैं, जो लोकल ट्राइब है, जो आदिवासी हैं, वो क्या इंडस्ट्रियस पीपल, वो काफी मेहनती हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम वहां रिफर कर रहे हैं, किसको रिफर कर रहे हैं, तो लोकल ट्राइब को जब हम रिफर कर रहे हैं एज अ होल वहां पे, तो वो क्या हो गया, पूरे एक समुदाय को जब हम एक कर रहे हैं तो वहां पे हम उसको सिंगुलर के सेंस में लिए। तो एज एन इंडस्ट्रियस पीपल, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, तो वो एन इंडस्ट्रियस पीपल है वो। तो पीपल एज अ सिंगुलर व्हेन यू वांट टू रिफर टू द इथनिक ग्रुप और नेशनैलिटी। तो ये सिंगुलर कब है, जब हमने एक इथनिक ग्रुप को जो है रिफर किया, मतलब जब हमने उनको रिफर किया, उनका मतलब प्रयोग किया। और नेशनैलिटी, जब हम उनकी राष्ट्रीयता को बताते हैं, इट्स प्लूरल इज पीपल्स। अब तब उनका प्लूरल क्या हो जाएगा, पीपल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है। सो दी अमेरिकन्स, तो यहाँ पे क्या, आर अ फ्रेंडली पीपल। तो ये पूरा अमेरिकन्स क्या है, एज अ ग्रुप हमने लिया, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, अ फ्रेंडली पीपल। ठीक है, तो वहां हमने ए लगाया, देखिए ए फ्रेंडली पीपल, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हमने लिया है। फिर
द पोर्चुगीज पीपल हैव चूजन अ न्यू प्रेसिडेंट। वो पूरे उन्होंने क्या किया, एक नया प्रेसिडेंट को चूज किया, ए न्यू प्रेसिडेंट। द ब्रिटिश पीपल ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो हम लोग जैसे राइट साइड, तो वो दे ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ब्रिटिश पीपल। तो ये ब्रिटिश पीपल जो हम कह रहे हैं कि वो एज अ पूरा एक इथनिक ग्रुप हम ले रहे हैं उसे। द आयरिश एंड दी स्कॉट्स, अब क्या हुआ, आयरिश और एक स्कॉट, जैसे यूपी एंड बिहार आर रिलेटेड पीपल, आर रिलेटेड पीपल। पीपल्स, तो यस कहें यूपी एंड बिहार आर रिलेटेड पीपल्स लगाएंगे, एस लगाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे दो हो गया ना, एक से ज्यादा नेशनलिटी हम कैरेक्टर बता रहे हैं। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लिव इन पीस। तो हम पूरे दुनिया के लोग को जब कह रहे हैं, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको शांति से रहना चाहिए। फिर द पीपल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जो पूरे लोग हैं आर लिटिल नोन, तो उन्हें उनके बारे में कम जानकारियां हैं। सो नॉट पीपल, पर्सन इज यूजली रिप्लेस्ड बाय पीपल इन कॉमन स्पीच बिकॉज पर्सन इज कंसिडर्ड रेदर फॉर्मल। जनरली स्पीच में वो बता रहे हैं कि यूज पीपल ओनली, ओके, बिकॉज पर्सन इज मोर फॉर्मल in the speech. So they are honest people. They are not honest persons. People ought to have some fundamental rights, not persons. People and persons are almost same, both having a plural sense. So be clear in that. So only person, when we use persons, P-E-R-S-O-N-S, so it is more formal. So people ought to have some fundamental rights. तो हिंदी मतलब इसका कहना क्या चाह रहा है कि पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उनके पास कुछ फंडामेंटल अधिकार होना चाहिए उनके पास। स्वाइन मीनिंग पिग्स, तो जो सुअर होता है पिग्स, स्वाइन का क्या मतलब होता है, पिग्स, प्लूरल फॉर्म है, इज अ प्लूरल, इट डज नॉट ऐड एस, तो ये एस में ऐड नहीं करते। स्वाइन मीनिंग अ नास्टी ऑब्नॉक्शियस पर्सन। अक्सर whenever you listen to the Trump when he gives speech, ये nasty person, he is a nasty, you nasty, हमेशा वो ऐसे बोलता है। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है पर जहां दम घुटता है, ऑब्नॉक्शियस, दम घुटने वाला इंसान है, इसके साथ बैठेंगे मेरा दम घुटता है, कहते हैं ना। तो स्वाइन मीनिंग अ नास्टी ऑब्नॉक्शियस पर्सन और थिंग एड्स एन एस इन दी प्लूरल। तो अगर एक से ज्यादा हो गया तो वहां एस लगा दिए तो स्वाइन्स हो गया। तो ये जो लोग हैं ना इस एरिया के, दे आर स्वाइन्स, मीन्स ये मतलब दम घुटता है इनके पास जाने से, ऐसे लोगों के पास। अक्सर हम लोग समाज में ऐसी बातें करते हैं। सो आवर नेबर्स आर डर्टी स्वाइन्स, तो ये जो मेरे पड़ोसी है ना, ये डर्टी स्वाइन्स है। स्वाइन्स मीन्स दम घुटता है इनके पास जाने से। सो कैटल इज ऑलवेज यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब। कैटल भी देखिए फॉर्म इसका जो है सिंगुलर है, लेकिन इसका सेंस जो है वो प्लूरल है। सो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में वो चर रही हैं। ही इज फीडिंग दी कैटल नाउ, नॉट कैटल्स। सो वो वर्तमान में जो है कैटल को फीड कर रहा, खिला रहा है। पुलिस इज ऑलवेज यूज्ड विथ अ प्लूरल वर्ब। पुलिस भी हमेशा उसका सेंस क्या है, हमेशा प्लूरल, बट उसका फॉर्म क्या है, वो उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, वो एस नहीं लगता है वहां पे। तो पुलिस हैव अरेस्टेड, हैव हुआ ना, पुलिस, दी पुलिस हैव अरेस्टेड 5 स्मगलर्स। द पुलिस आर लुकिंग एट सम क्लूज, कुछ उसको क्लू मिल जाए तो जिससे कि उसको अपराधी को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। दी प्लस एडजेक्टिव डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पीपल इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। तो दी प्लस एडजेक्टिव कोई भी आप यूज करेंगे ना, सो दी पुअर, तो ये क्या कहता है, क्लास ऑफ पीपल को बताता है, और ये हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, बट इसमें एस और यस नहीं ऐड होता है। तो द शी सर्व्स दी पुअर, तो दी पुअर क्या होगा, क्लास ऑफ पीपल बता रहा है, बट पुअर्स नहीं, पुअर, तो पुअर इट्स अ क्वालिटी ना। शी सर्व्स दी पुअर एंड दी सिक, बीमार लोगों को। तो जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, ओल्ड एज होम सुना होगा ना आपने, तो उसमें सो शी सर्व्स दी पुअर एंड दी सिक, तो वो एक क्लास हो गया। दी पुअर अपने आप में एक क्लास हो गया, ये बता रहा है। मतलब दी प्लस एडजेक्टिव ये क्या होता है, ये किसको बताता है, पूरे क्लास, एक ग्रुप को बताता है। तो नॉट पुअर्स और सिक्स। तो दी प्लस एडजेक्टिव डिनोटिंग मटेरियल मे बी यूज्ड इन बोथ नंबर्स, मतलब सिंगुलर भी आप इनको यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं, लेकिन कब यूज कर सकते हैं, दी प्लस एडजेक्टिव जब ये बताता है कि ये मटेरियल है, ठीक, जिसको आप टच कर सकते हैं।
तो वहां पे मैंने बताया पुअर और सिक, तो वो तो एक सेंस है। सो द वाइट ऑफ एन एग इज न्यूट्रिशियस। तो यहाँ दी वाइट ऑफ एन एग, एग के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दी वाइट, तो एग की जो क्वालिटी है जो वाइट है, दी वाइट ऑफ एन एग, तो एग के जो अंदर जो वाइट है उसकी पूरे चीज को हम बता रहे हैं ना, तो वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको बहुत नंबर्स में यूज कर सकते हैं। दी वाइट ऑफ एन एग, तो एक एग की बात कर रहे हैं, तो एन एग लिखा, इज न्यूट्रिशियस। तो ध्यान दीजिएगा, दी प्लस एडजेक्टिव denoting material may be used in both numbers. So second sentence में she takes the whites of 2x, तो जैसे 2x आ गया तो देखिए वहां पे the whites हो गया, तो हमने पहले में क्या था, the white सिंगुलर हमने यूज किया था, अब यहां पे क्या हो गया, the whites प्लूरल यूज कर दिया। नाउ कमिंग टू the प्लस एडजेक्टिव, जब the प्लस एडजेक्टिव कलर को बताता है, तो वहां मैंने बताया आपको the प्लस एडजेक्टिव मटेरियल नाउन के बारे में बात करता है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज करते हैं। और दी प्लस एडजेक्टिव जब कलर को डिनोट करता है, क्लास ऑफ पीपल, तो वहां पे हम ऑलवेज यूज प्लूरल, लाइक ब्लैक्स जो अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीका में ब्रिटिश में जो नीग्रोज वो कहते हैं ब्लैक्स, ब्रिटिशर्स को कहते हैं व्हाइट्स, रेड्स जो रेड इंडियन होते हैं। तो जब हम कलर कहते हैं, कलर के बारे में किसी क्लास ऑफ पीपल को, तो व्हाइट्स, रेड्स, ब्लैक्स एस ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। बोथ ब्लैक्स, देखिए बोथ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ जैज म्यूजिक। तो एक म्यूजिक होता है जैज म्यूजिक, तो उसमें उसको जो कंट्रीब्यूट किया है दोनों ब्लैक्स ने भी किया है, मतलब उनके समाज के लोग, और व्हाइट के जो भी समाज के लोग जो हैं उन्होंने, दोनों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसको ऐसे भी आप समझिए कि हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ है जो भी है, उसको सारे कम्युनिटी ने, चाहे ये जनरल कास्ट है, चाहे ओबीसी कास्ट है, चाहे SC ST कास्ट, सबने कंट्रीब्यूट किया, तभी हिंदुस्तान जो है तरक्की के रास्ते पे है। नाउ यूथ एंड यूथ्स दोनों में डिफरेंट है। देखिए यूथ, यंग पीपल एज अ ग्रुप, ये बताता है कि यूथ ये कंसेप्ट है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो ये क्या है कि यूथ जो है वो कलेक्टिव नाउन इसका मतलब है, एंड कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो इट इज यूज्ड विद दी अदरवाइज पॉजेसिव नाउन एस। तो आइदर जैसे हम दी यूथ कहेंगे या पॉजेसिव नाउन के साथ यूज करते हैं, कंट्रीज यूथ, अमेरिकाज यूथ, ओके, इंडियाज यूथ। तो ये पॉजेसिव नाउन के बाद हम यूज करेंगे यूथ, या दी यूथ यूज करेंगे। तो दी यूथ ऑफ द नेशन, तो इसमें मैंने आपको बताया ना, दिस यू कैन यूज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सो द यूथ ऑफ द नेशन आर her real wealth. Either you can say the youth of the nation is her real wealth. दोनों फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। A country's youth has to be looked after well, और country's youth have to be looked after well. दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल आप यूज कर सकते हैं यूथ के साथ। यूथ्स इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन इन प्लूरल सेंस। फिर दी यूथ इन दिस सेंस हैज द सेम मीनिंग एज द यंग। तो दी यूथ का मतलब दी यंग, सेम मीनिंग है इसका। द यूथ और दी यंग हैव टू हैव द राइट टू वर्क, मतलब उनके पास अधिकार होना चाहिए काम करने का। यूथ, द यूथ और दी यंग दोनों आप इंटरचेंज यूज कर सकते हैं। हैव टू हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए, राइट टू वर्क, काम करने का। यूथ इज, अब देखिए एस जब हम प्लूरल फॉर्म इसका यूज करते हैं, यूथ इज यूज्ड व्हेन यंग पीपल आर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल। तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, नॉट अ कलेक्टिव नाउन। तो इससे पहले वो कलेक्टिव नाउन था जब हम एस यूज नहीं कर रहे थे। तो आप ये देखा होगा कि यूथ हम यूज किए थे, वहां पे सिंगुलर भी यूज कर रहे थे, प्लूरल भी यूज कर रहे थे, लेकिन यूथ्स जो है ये जो है हम काउंटेबल नाउन, नॉट अ कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, पहले से इसमें डिफरेंट है, जैसे एस लगाया हमने। 5 यूथ्स हैव बीन अरेस्टेड, तो इसको हमने काउंटेबल बना दिया ना, तो 5 यूथ्स हैव बीन अरेस्टेड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। एस लगाया तो 5 के बाद ये प्लूरल हो गया, यूथ्स हैव बीन अरेस्टेड। यूथ इज यूज्ड व्हेन इट इंडिकेट अ स्टेट ऑफ बीइंग यंग। स्टेट ऑफ बीइंग यंग मतलब वो जवानी की अवस्था को कह रहा है। यूथ जो है ये जब ये इंडिकेट करता है तब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, कि कहते हैं ना यूथ, जब मैं यूथ था, जब मैं जवान था, तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया उस वक्त। तो उसमें एक सेंटेंस आता, शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन हर यूथ। तो वो हिंदुस्तान में जितने जवान लड़के या लड़कियां रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं अपनी जवानी में। तो शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन हर यूथ। तो हर यूथ मतलब ये क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड, जवानी का वो दौर बता रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नाउ इनिंग्स, इनिंग और इनिंग्स। तो इनिंग इज सिंगुलर इन बेसबॉल। तो बेसबॉल में इसको सिंगुलर यूज किया जाता है। इट्स प्लूरल फॉर्म इज इनिंग्स। उसका प्लूरल फॉर्म इनिंग्स है, जो क्रिकेट में हम यूज करते हैं। इनिंग्स इज इन क्रिकेट इज यूज्ड इन बोथ नंबर्स। तो ये बता रहा है कि कंफ्यूज नहीं होगा, बेसबॉल में ये सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन क्रिकेट में क्या होता है, इसको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज करते हैं। तो मोस्टली जो है, जैसे इट्स प्लूरल फॉर्म इज नॉट इनिंग्स। मैं ऐसे बोलता हूं आपको कि फॉर्म इसका प्लूरल ही रहेगा, बट आप उसका सेंस सिंगुलर या प्लूरल आप यूज करिए, लेकिन उसका फॉर्म हमेशा क्रिकेट में इनिंग ऐसी लगा रहेगा वो। सो अ प्लेयर प्लेड एन इनिंग्स ऑफ 101। 101 रन बनाया उसने। So nouns plural in form but singular in sense. Form is what the structure is what structure when how when it is become plural form when you add s. So news, summons. समन मीन्स वो कहते हैं ना, आपको समन आया है, जो पुलिस अधिकारी आकर देता है समन, किसी नोटिस देता है जो। क्रॉस रोड्स, जो चौराहा है। शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है कि SHAMBLES, जो जर्जर नहीं होता है, मकान जैसे जर्जर हो जाता है, गंदा सा एकदम टूटा फूटा, तो शैम्बल्स उसको कहते हैं। शिंगल्स, SHINGLES, तो ये कच्चा दाद होता है, जो नसों की बीमारी से, जिसमें त्वचा वो चकत्ते हो जाते हैं, मतलब थोड़े अजीब से वो चकत्ते चकत्ते से हो जाएंगे ना, तो उनको कहते हैं हम शिंगल्स। फिर बिलियर्ड्स, बिलियर्ड तो आप जानते हैं, जो खेलते हैं, एक डंडा होता है और बहुत सारे बॉल्स होते हैं टेबल पे, बिलियर्ड्स। मम्स को होने वाली एक संक्रमणशील रोग है जिसमें गर्दन सूज जाती है, सिर्फ गर्दन ऐसा सूज जाती है, तो मम्स कहते हैं उसको। मीजल्स जो है बच्चों को हो जाता है, ये माता जी कहते हैं ना, आइए, जो छोटे 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 पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं, मीजल्स। रिकेट्स, सूखा रोग कहते हैं, पोषक आहार के अभाव में बच्चों में होने वाला असाध्य रोग, जिसमें मतलब ये एक रोग होता है। टांगों की हड्डियां जो है नरम पकड़ के मुड़ जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। तो गैलोस, GELLOWS, पुराने जमाने में लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का बड़ा चौखट होता था। उस पर खड़े होते थे, जैसे कि वो लगता था ना हट जाता था, तो वो फटक से लटक जाते थे। तो वो जो तख्ता होता था ना, वो उसको सपोर्ट करता था, जैसे ही तख्ता हटाए तो वो लटक गया ना सीधे, तो उनको कहते हैं गैलोस, GALLOWS। द न्यूज इज गुड, नॉट आर गुड। तो न्यूज जो है ना, ये इसका जो फॉर्म है क्या है, वो प्लूरल है, बट इसका जो सेंस है वो क्या है, सिंगुलर है। तो प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस। दैट हाउस इज अ कंप्लीट शैम्बल्स। तो शैम्बल्स का मैंने बताया ना, जर्जर, तो पूरी तौर पे जर्जर, तो वो जो घर था पूरी तौर पे जर्जर था, तो दैट हाउस इज अ कंप्लीट शैम्बल्स। तो प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस। बट ए शैम्बल नहीं हम कह सकते हैं। ही रिसीव्ड अ सम्मन्स टुडे। तो अ सम्मन्स मीन्स नॉट SUMMON, ये ऐसी लगेगा हमेशा, इसका फॉर्म प्लूरल होगा, बट सेंस तो इसलिए अ सम्मन्स टुडे लिखा है। शी इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स, वो चौराहे पे खड़ी है, नॉट ए क्रॉस रोड, ठीक है। नोट द प्लूरल ऑफ समन्स इज समन्सेस। सो SUMMONSE, उसको बहुत सारी नोटिस मिली, तो वहां पे समन्सेस आ जाएगा, ठीक है। सो नाउन्स इन द सेंस इन द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फॉर्म एक ही है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे डियर, तो इसको सिंगुलर में भी आप इसको ले सकते हैं, प्लूरल में भी ले सकते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री जैसे ये सब मुर्गी, ये सब क्या है, पोल्ट्री में आता है ना। शीप, सैल्मन, SALMON, ये एक सामन मछली होती है, बड़ी मछली होती है, जिसका जो त्वचा जो होता है
वो रूप भला होता है, लेकिन मांस जब उसको अंदर जो फ्लैश होता है, दैट फ्लैश इज इनसाइड इज ऑरेंज कलर होता है। ओके, और इसे खाया जाता है। सैल्मन, स्टोन, STONE, स्टोन मेजर ऑफ वेट। तो हम पहले क्या, स्टोन, स्टोन विच इज यूज टू मेजर अ वेट, तो पत्थर को, कंकड़ को कहेंगे स्टोन। एयरक्राफ्ट, जहाज जो हवा में उड़ता है, एयरक्राफ्ट। क्राफ्ट वर्क, एक आकृति आपने बनाई है, समथिंग दैट। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे को यहाँ पे कहते हैं कि इसके इतने ऑफस्प्रिंग है। पब्लिक, तो आप जानते हैं जनता को कहते हैं। नेम्स ऑफ नेशनलाइट्स एंडिंग इन ESE, जैसे जापानीज, चाइनीज, नेपालीज। तो दिस इज a sheep we are using. Same we are using, these are sheep. So not sheeps. So form is singular. The public are against this project. So here public is considered as a plural, but form is same, singular. He weighs just 5 stone, not stones. उसका जो वेट है वो 5 स्टोन के बराबर है, बता रहा है। तो बड़े ध्यान देने वाला था। ही वेज, WEIGS, वेज जस्ट 5 स्टोन्स नहीं लगेंगे, स्टोन ही रहेगा वो, बट इसका जो सेंस है वो प्लूरल आप इसका सेंस रहेगा। सो ही इज अ जापानीज। ओके, फिर दे आर जापानीज, सो नॉट जापानीज। ओके, सो नोट, नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, लाइक डक। डक के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, डक विच इज हैविंग अ स्मॉल नेक, ओके, एंड स्वान इज हैविंग अ बिग नेक। तो उन्हें हंस कहते हैं, ये बत्तख होता है डक। पैट्रिज और pheasant, 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 these are, so in the word of hunting they have the same form in both number, but in, so what he is saying that कि जो पैट्रिज है, pheasant है, ये जो पैट्रिज के तीतर है बता रहा है, जैसे पैट्रिजेस तीतर, जो ये फोटो भी मैंने डाला है। तो दिस व्हेन दे आर इन हंटिंग ना, तो हम इसे वही यूज करते हैं। फॉर्म इज सेम, बट we use in both like singular as well as plural as per the requirement, but in normal use we add an s. Okay, so now there were partridge in plenty today. So hunting का जब 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 हम शिकार करने गए, तो हमारा जो सेंस क्या, हमारा जो उद्देश्य क्या, हम शिकार करने गए, तो वहां पे हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो देयर वेयर पैट्रिज इन प्लेंटी टुडे। तो यहाँ पे साफ लिखा है मैंने कि इन द वर्ल्ड ऑफ हंटिंग दे हैव द सेम फॉर्म इन बोथ नंबर। तो जो भी फॉर्म सेम ही रहेगा। सो दे वे पैट्रिज और पैट्रिजेस हम लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज में हम क्या लिखते हैं, जैसे 5 डक्स, एस लगाते हैं। तो नॉर्मल यूज में पैट्रिजेस लिखेंगे, लेकिन जब हंटिंग होगा के फॉर्म होगा तो हम पैट्रिज लिखेंगे। बहुत क्लियर है। A group of ducks is referred to as a flock while they are in flight or flying. तो ये बता मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो बतख हैं वो जब उड़ते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं उन्हें, बहुत सारे उनके फॉर्म है। जब वो उड़ते हैं, जब वो पानी में तैरते, जब वो पानी में चलते हैं, या जब वो तैरते हैं, जब वो मैदान में चलते हैं, तो उनके 10-12 हैं, वो मैंने अभी दिया नहीं है, काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लॉक कब यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ डक इज रिफर्ड टू एज अ फ्लॉक व्हेन दे आर फ्लाइंग। दे मोर ऑफन रिफर टू एज राफ्ट व्हाइल ग्रुप इज इन ऑन वाटर। जब वो वाटर पे रहते हैं तो उन्हें कहते हैं राफ्ट। उस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, राफ्ट। ओके, डक के। नाउ इशू एंड इश्यूज। इशू मीनिंग ऑफस्प्रिंग डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो ये क्या बोला, जब आप बच्चे के रिफर करते हैं ना कि भाई ही हैज नो, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ही हैज नो इश्यू, उसको कोई बच्चा नहीं है, तो वहां पे यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। तो ही डाइड विदाउट एनी इशू, वो बिना बच्चे के मर गया। तो जहां बच्चे का रिफर आता है तो इशू, तो वहां पे हम एस नहीं लगाते हैं। लेकिन बट इशू मीनिंग अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। तो अगर कोई डिस्कशन का टॉपिक है, तो कोई प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या कोई उसको हम कहते हैं कि किसी इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दीज इश्यूज शुड बी सेटल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे ये राम जन्मभूमि का था ना, सो दीज इश्यूज शुड बी सेटल्ड। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसे
शुड बी सेटल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स न्यायालय में। फिश और फिशेस कहाँ यूज करते हैं? फिश एज अ फूड डज नॉट टेक ए और दी प्लूरल फॉर्म फिशेस। तो जब हम उसको खाने के सेंस में यूज करते हैं, रिफर करते हैं, तो वी डोंट यूज ए और वी डोंट यूज एस। ओके, एंड ऑफ द वर्ड, वेरी क्लियर। सो आई ईट फिश एवरी डे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम खाने के सेंस में ले रहे हैं। सो नॉट अ फिश और फिशेस, वी डोंट हैव एस। तो शी इज फॉन्ड ऑफ फिश, वो बहुत उसे पसंद है फिश। यहाँ भी खाने के सेंस में, तो नॉट फिशेस। बट फिश यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन टेक्स ए एंड द प्लूरल फॉर्म इज फिश और फिशेस। तो जब काउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो हम उसमें लेते हैं फिश और फिशेस। सो और फिर ये खाने के सेंस में नहीं होता है, बहुत क्लियर है। तो ही कॉट अ बिग फिश टुडे, तो ये खाने के सेंस में नहीं, तो अ बिग फिश टुडे यहां पे आ गया, हमने सिंगुलर फॉर्म ले लिया इसका। So he caught two big fishes yesterday. So he caught two big fish और fishes दोनों हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ। तो फिश यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन टेक्स ए एंड द प्लूरल फॉर्म इज फिश और फिशेस, दोनों हम यूज कर सकते हैं। प्लूरल फॉर्म जो है फिश और फिशेस। तो यहाँ हमने क्या किया है, ही कॉट टू बिग फिश yesterday। तो यहाँ हमने काउंटेबल नाउन यूज किया है। ओके, और ये भी हम लिख सकते हैं, ही कॉट टू बिग फिशेस yesterday। द यूजुअल फॉर्म इज फिश टू डिनोट अ मास ऑफ फिश। तो पूरे मास मतलब पूरे ग्रुप को, फिश को जब हम डिनोट करते हैं, फिश यूज करते हैं, हम एस नहीं यूज करते हैं। तो शी बॉट अ लॉट ऑफ फिश। तो जब हम एक मास मतलब एक बहुत सारे नंबर्स को हम जब बताते हैं कि उसकी वो उतनी ज्यादा संख्या को हम बताते हैं, तो हम जो है वो एस नहीं लगाते हैं, तो फिश हम यूज करते हैं सिर्फ। सो सम काइंड्स ऑफ फिश डू नॉट ऐड एन एस इन द प्लूरल फॉर्म बिकॉज द प्लूरल फॉर्म इज अनचेंज्ड। तो कुछ फिश के बारे में बता रहे हैं, उनके नाम है, अलग अलग फिश है ना, उनके नाम है जिसमें हम एस ऐड नहीं करते। कार्प, CARP, इसको आप जानते, जो लोग खाते हैं वो जानते, कतला जो है उसको कहते हैं, या रोहू मछली है, मैंने फोटो भी डाला हुआ है। कॉड, COD। तो हरे रंग की मालाबार जो जैसे केरल में पाई जाती है खारे पानी में, तो आपने सुना होगा ना, वहाँ पे खारा पानी मीन्स नमक वाला, वहाँ पे 500 रुपये केजी मिलता है ये चीज़। सैल्मन, रवास, तो ये इसमें एस हम नहीं लगाते हैं। सैल्मन जो है, इसका ही फोटो मैंने डाला है। ट्राउट, ट्राउट जो है उत्तराखंड में किसानों ने जो है उसकी फिशिंग शुरू कर दी है। जानकार बताते हैं कि ट्राउट जो मछली होती है वो दिल के मरीजों के लिए रामबाण का काम करती है। यह मछली ठंडे पानी में रहती है, वहाँ तो ठंडा है ना वहाँ पे, तो वो 1000 रुपये केजी मिलती है। तो ट्राउट हो गया, तो वहाँ पे एस हम यूज नहीं करते, ये फिश के जो नाम है ये सब बता रहे हैं। तो लेकिन यही हम एस यूज करते हैं क्रैब्स, देखिए वहाँ पे एस यूज करेंगे। ईल्स, EELS हम यूज। तो ये ईल्स क्या, इलेक्ट्रिक एक नाइफ फिश परिवार के सदस्यों में से मानी जाती है। इस फिश के आगे इसलिए लगता है, इस शॉक लगता है इससे। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल जो है 600 वॉट तक का झटका मार सकती है, जो कि इंसान को भी मार सकता है। तो ईल हो गया। फिर ये भी साउथ में पाया जाता है, वो केरल। हेरिंग्स जो है, HERRINGS, तो यहाँ पे लगा झुंड में मछलियां होती हैं, इनको झुंड मछली भी कहते हैं। तो मछली में भी आप क्लियर हो, यू गॉट क्लियरिटी ना, दैट कुछ में एस नहीं लगाते हैं, कुछ में एस लगाते हैं। लॉबस्टर, झींगा मछली देखे होंगे ना आप, मिलता है गाँवों में झींगा मछली, उसको लॉबस्टर कहते हैं, वहां एस लगाते हैं लॉबस्टर। तो कुछ इससे पता क्या चल रहा है कि ये सब काफी झुंड में रहने वाले, वहां एस लगाते हैं। शार्क्स लगाते हैं, ये सब झुंड में रहती है। नाउ हेयर एंड हेयर्स, तो बाल है ना ये, तो हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो हेयर यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल, सो इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। लाइक अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर गिन तो सकते हैं नहीं, कहाँ गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो हम कहेंगे अभी बाल कटवाने गए थे, आज मैंने बाल कटवाई, तो आई गॉट माई हेयर कट। अब थोड़ी कहेंगे 100 कटवाया, 1000 कटवाया, 1 लाख कटवाया। सो नॉट हेयर्स, एस नहीं लगाते हैं। शी इज ब्रशिंग हर हेयर, बाल बना रही है, तो शी इज ब्रशिंग हर हेयर। तो ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए यूज करते हैं, विच इज अनकाउंटेबल। आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना वो कॉम किया उसने, कितना बाल झाड़ा उसने, नहीं पता ना। सो हेयर कंसिडर्ड सेपरेटली इज अ काउंट। जब ये काउंटेबल हम करते हैं, जैसे अ हेयर, 1 हेयर, 2 हेयर्स, सो ओनली फ्यू हेयर्स, तो
आई फाउंड अ हेयर इन दी सूप, आई फाउंड अ हेयर इन दी टी, इन अ कप ऑफ टी। तो ये क्या, एक बाल हमें जो है सूप में मिला, तो देयर आर ओनली अ फ्यू ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, तो उसके सर पे कुछ ग्रे हेयर जो है उसे उसके सर पे हैं। वर्ड, वर्ड्स, वर्ड्स मतलब ये शब्द के बारे में बता रहा है कि वर्ड मीनिंग प्रॉमिस और इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज इन दी सिंगुलर फॉर्म। तो जब आप किसी को जबान देते हैं ना, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म वर्ड ही यूज करते हैं। हमने उसको वर्ड दिया, मतलब हमने उसको वचन दिया। तो ही इज अ मैन हु नेवर गोज बैक ऑन हिज वर्ड। तो ये वो इंसान है जो अपने जबान से फिसलता नहीं है, मतलब वो जबान की कद्र करता है। वो एक बार जबान दे दिया तो वो उसको करेगा। तो वहां पे जब हम ये कहते हैं ना कि वो, मैंने आपको अभी बताया कि जबान देना मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो है ना राम जी का रामायण में। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, तो उन्होंने एक बार वचन दे दिया ना, फिर उससे वो मुकरेंगे नहीं। तो ही, तो जब वहां वचन देने वाली बात है तो वहां वर्ड यूज करते हैं, एस नहीं लगाते। तो शी सेंट मी वर्ड दैट आई शुड सी हर इमीडिएटली, तो उसने मुझे संदेश भेजा। तो जहां ये संदेश या वचन ये दो चीज है, तो वहां पे हम एस नहीं लगाते हैं, बहुत क्लियर है। तो उसने मुझे संदेश भेजा कि मैं तुरंत उनको देखने आऊं, तो वहां पे एस नहीं लगा। वर्ड इन द सेंस डजंट टेक ए बट इट कैन टेक वंस हिज हर एटसेट्रा। सो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें वर्ड इन दिस सेंस डजंट टेक ए नहीं लेगा, बट वो वंस, वंस वर्ड, हिज वर्ड, हर वर्ड लेगा। जैसे ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपनी जबान को रखा। ही केप्ट हिज वर्ड, तो राम ने क्या रखा, अपनी अपनी जबान को रखा ना उन्होंने, ही केप्ट हिज वर्ड। तो यहाँ पे हमने फिर देखिए, व्हेन वर्ड रिफर्स टू द आइटम्स इन दी वोकैबुलरी। तो अब वोकैबुलरी तो हजारों लाखों वर्ड हैं, एक डिक्शनरी में लाखों वर्ड है। उसमें कुछ वर्ड को जब हम लेंगे, मान लीजिए जो जो वर्ड जो है ए से स्टार्ट होता है, तो या सी से कोई वर्ड स्टार्ट जो होते हैं, तो उतने सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे हम, तो कहेंगे, तो वहां पे हम एस लगाएंगे। तो उतने सारे आइटम हो गए ना, बहुत सारे वर्ड्स। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब शब्द, शब्दकोश। इतने सारे शब्दकोश में जो, मान लीजिए ब नाम से जितने भी शब्द है, जब उनको आप इंगित करेंगे तो क्या होगा। सो टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। जैसे साइंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट, आईएसटी लगता है। तो ये जितने भी आईएसटी वाले हैं, तो हम कह रहे हैं टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। वर्ड्स मतलब यहाँ पे एस लगा है, क्योंकि इतने सारे हम यहाँ पे तो डेंटिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है दांत का, साइंटिस्ट जो विज्ञान का स्पेशलिस्ट होता है, तो वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत सारे वोकैबुलरी शब्दकोश में ये स्पेसिफिक जो है, इनका हमें मीनिंग आप बताइए। नाउ वर्क, वर्क्स, होमवर्क, हाउसवर्क। वर्क इन द सेंस ऑफ डूइंग और मेकिंग समथिंग इज अनकाउंटेबल। व्हाट इज दिस मीन्स, वर्क इन द सेंस ऑफ डूइंग, वर्क को वी कैनॉट काउंट ना, लाइक हमने कोई काम किया, सपोज एक चेयर बनाया, तो वी कैनॉट क्वांटिफाई, वी कैनॉट मेक इट, क्या क्या काम किया, चेयर बनाया, ओके। तो वर्क इन द सेंस ऑफ डूइंग और मेकिंग समथिंग इज अनकाउंटेबल। उसको काउंट नहीं कर सकते हैं वर्क को। भाई पूरा दिन तुमने क्या किया, हाँ, जैसे होता है ना बातचीत को, हम कहते हैं 1 महीना मैं यहाँ नौकरी की, या एक महीने यहाँ काम किया। तो वहां पे क्या है, सो इट इज ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म बट इट डज नॉट टेक ए। ये हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में रहेगा कि मैंने वहां वर्क किया, लेकिन ए भी नहीं लेगा, एक वर्क नहीं किया। सो ही इज एट वर्क नाउ, वो अभी काम पर है, मतलब वो कहीं गया हुआ है, वो काम वहां पे, ही इज एट वर्क नाउ, नॉट वर्क्स। तो जब भी ये अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, तो वहां पे वर्क होगा, नॉट एस। तो शी ओज हर सक्सेस टू दे हार्ड वर्क, तो वो अपनी सारे सक्सेस है वो श्रेय देना सिर्फ अपने हार्ड वर्क को देना चाहती है। तो यहाँ अनकाउंटेबल हुआ। दिस इज वॉलेंट्री वर्क। वॉलेंट्री वर्क मतलब, वॉलेंट्री का मतलब पैसा नहीं लिया है, स्वेच्छा से। सो दिस इज वॉलेंट्री वर्क, नॉट अ वर्क। वर्क मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट और इमेजिनेशन कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म वर्क्स। तो जहां पर किसी के जैसे कोई कलाकार है, उनके कलाकृति जो बनाया उन्होंने, तो वहां पे हम आएंगे वर्क्स यूज करेंगे। जैसे शायद मेरे ख्याल से केरला में एक चित्रकार थे,
सरकार थे, क्या मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो उनका वर्क्स, तो रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क्स, मतलब उन्होंने जो भी कविता लिखी वर्क्स में आता है, जैसे तो दीज आर द वर्क्स ऑफ, तो दीज आर द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दीज आर द वर्क्स ऑफ अनीता देसाई। तो किसी इंसान के द्वारा जो है उसकी बुद्धि से बना कोई चीज है तो वर्क्स आ गया वहां पे। तो सम वर्क्स ऑफ आर्ट आर कैलकुलेटेड टू शॉक, तो कुछ सो फिर क्या आ गया वर्क्स ऑफ आर्ट, तो वर्क्स ऑफ आर्ट हो गया वहां पे कि कलाकृति द्वारा है, कैलकुलेटेड, जैसे आप जाइए महाराष्ट्र में कलाकृतियां हैं वहां पे, वो आर्ट वर्क्स जो है वो शॉक करती हैं देख के कि अरे पत्थर पे उन्होंने एक ही पत्थर पे पूरा बना दिया है। सो बट समहाउ बट होमवर्क हाउस वर्क इज ऑलवेज सिंगुलर, वेरी क्लियर, होमवर्क एंड हाउस वर्क, जो घर में आके आप करते हैं होमवर्क एंड हाउस वर्क, जो घर के काम होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, मतलब वो एक घर में आके आप कर रहे हैं ना, तो वो एक घर के अंदर सारी जो चीजें हैं, तो दे आर डूइंग, सो दे आर डूइंग देयर देयर होमवर्क। नाउ नॉट होमवर्क्स, एस नहीं लगेगा। वर्क्स इंडिकेटिंग अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल सेंस। तो जब हम किसी बिल्डिंग से संबंधित और या मशीनरी से संबंधित हम इसको रेफर करेंगे, then we will use it both sense, singular sense as well as plural sense. Okay, so like iron works is not closed even on Sunday, or इसको singular we are using the singular sense, so same iron works can be used in a plural sense also. The iron works are not closed even in संडेज। तो ये बता ये रहा है कि आयरन वर्क्स जो लोहे से संबंधित कार्य हैं, तो कहते हैं कि ये लोहे से संबंधित कार्य जो आज भी नहीं हुआ, हिंदी में तो ऐसे कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे कि बहुत सारे काम थे आयरन वर्क्स। सो बट फायर वर्क्स इज ऑलवेज यूज्ड इन दी प्लूरल। सो आयरन वर्क्स इज, मतलब आप उसको यू कैन यूज बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल। बिल्डिंग से संबंधित है ना, बिल्डिंग में हो गया आयरन वर्क यूज हो रहा है, और मशीनरी बहुत क्लियर है, आयरन बिल्डिंग से संबंधित जो मटेरियल होते हैं या मशीनरी से, वहां पे यू कैन यूज बोथ is as well as are, means you can use in a plural sense, but fireworks is always used in the plural. The fireworks have damaged this house, not has. Okay, so now nouns denoting number of weight. Brace, so here I have given a picture, brace, teeth brace. तो ये देखिए आप टीथ को ना दो लगाते हैं ना, ऊपर से भी जोड़ा है, तीसरे नीचे भी जोड़ा हुआ है ऐसे, तो वो एक लगाते हैं, तार लगाते हैं, तो ब्रेस कहते हैं। ब्रेस का मतलब क्या, वो सपोर्ट करता है उसको, दोनों को जोड़ा है, मतलब दोनों जो वायर हैं, टू वायर्स हैं, उन्होंने ऊपर वाले भी टीथ को पकड़ के रखा है, नीचे वाले भी टीथ को, तो ब्रेस, तो सपोर्ट सिस्टम को कहते हैं ब्रेस। काउंटेबल नाउन, यू कैन रिफर टू टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज अ ब्रेस ऑफ दैट थिंग। द प्लूरल फॉर्म इज ऑल्सो ब्रेस। सो अ ब्रेस ऑफ बॉटल्स ऑफ मर्सियर, तो अ ब्रेस ऑफ बॉटल्स ऑफ मर्सियर मीन्स दो बॉटल है, लेकिन दोनों का जो सपोर्ट है ना, वो उसको बोल रहा है ब्रेस ऑफ बॉटल्स ऑफ मर्सियर। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग दैट यू कैन रिफर टू टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज अ ब्रेस ऑफ दैट थिंग। सो synonym is pair and couple or twosome. Okay, so brace is a device attached to a part of a person body, वो किसी इंसान के बॉडी में लगा रहता है, जैसे ये गले में ये ब्रेस, फॉर एग्जाम्पल वीक लेग, लेग जब वीक होता है तो आप देखेंगे सपोर्ट सिस्टम लगा रहता है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट इट। तो जो पैर होता है ना, तो उसके दोनों साइड में, एक साइड में और दूसरे साइड में स्टील का आपने देखा होगा, तो ब्रेस उसको कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है ब्रेस का, वो सपोर्ट करता है उसको, वीक लेग को। ही वोर लेग ब्रेसेस आफ्टर पोलियो इन चाइल्डहुड। तो जो दो पैर हो गया ना, ये दो पैर में अगर वो यूज कर रहा है, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो वो क्या रहा है, ही वोर लेग ब्रेसेस आफ्टर पोलियो इन द चाइल्डहुड। जब उसको पोलियो हो गया बचपन में, तो उसने लेग ब्रेसेस पहनना शुरू किया। सो शी वियर अ नेक ब्रेस, तो ये नेक ब्रेस, वो शी वियर्स अ, वो नेक का जो ब्रेस है वो यूज करती है, पट्टा जो होता है ना वो। सिनोनिम जो है सपोर्ट या स्टे, स्कोर, डजन, हंड्रेड, ये क्या नंबर बता रहा है ना, थाउजेंड्स, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। सो व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय अ डेफिनेट न्यूमरल्स और दे आर इन सिंगुलर फॉर्म,
So example, like just before the final whistle, Waiching Bhutia scored a brace. तो brace के पहले क्या है? What is the before brace is A. So when they are preceded by a definite numeral or they are in singular form. So brace means here it means two goals. So Waiching Bhutia, what he did before final whistle, he made a brace means two goals he has made. So 3 gross pencils. So now here just see before noun. This is saying when they are preceded by a definite numeral or they are in a singular form. So definite numeral 3 gross pencils. So we have to write pencils. 5 dozen eggs. 600 boys. So it's definite numeral 6. So when it's coming more than one, it is so boys. 10,000. So these numerals you don't have to add as the grosses, dozens. You don't have to add. So they are when they are in preceded by a definite numeral or they are in a singular form. So 4 million people. So people itself is a plural. Okay, so you don't have to write peoples. So we don't say I have 2 dozens pins. So correct is I have 2 dozen pins. That is correct. She has 5,000 rupees. Wrong it is. Okay. So she has 5,000 rupees. There are 300 girls is wrong. 300 girls in the school. When these nouns are followed by, so first is noun, then of plus plural noun. To denote a large number or amount, they have a plural form, that is S form. So dozens of pens. So when the plural, it's written up followed by of. So of plus plural before of, when number comes like dozen, 100, 1,000, so you have to add S. So dozens of pens, hundreds of boys, thousands of masks, billions of stars. So very clear here the difference between two. Now pair and pairs. So there is a confusion now where to use. So the plural form of pair is, you can use pair also in the plural form and pairs also. How? Let us see. So he bought a pair of gloves. So a pair of gloves means for one of this for this side and for another for this side. He bought a pair of gloves. He bought 2 pair of shoes. So either you can write 2 pair of shoes as well as 2 pairs of shoes. Both are correct. But in the current English, we use regular plural form. So when it comes to, no, so we have to write pairs of shoes. So usually current English. So she has bought 2 pairs of shoes today. So, but both are correct. So in pairs always takes a plural form. So correlative, like what it's saying, that in pairs always takes a plural form. Like relative conjunction goes in pairs, not in pair. Ton and tons. The plural form of ton is ton or tons. Both it is. Again here it is. He bought 5 tons of coat or ton of coat. But in current English form, we used to write he bought 5 tons of coal. So we used to write S. We have to add in at the end of ton. Tons of indicating a large quantity or number always take a plural form. So she has got tons of news, not ton. Head. Head does not add an S in the plural form when it means individual animals in a herd or group. So what it is saying that, as per let us see the sentence. She has got 10 head of cattle. So when in a group, animal or human being, herd of group or group is there. So we cannot say 10 heads. Okay, so actually we are indicating the numbers in that group, how many people. So she has got 10 heads of cattle. Okay, उसके पास 10 जो है कैटल है. हेड मतलब तो वहां पे हेड्स नहीं लगाएंगे. तो हेड का ये क्या मतलब है, ये प्रतीकात्मक रूप से हम यूज कर रहे हैं, मतलब इट्स अ सिंबॉलिक of that particular group of animals. So we are not counting by 1, 2, 3, 4. We are saying 10 head. Okay. A single domestic animal, example, 200 head of cattle.
So 200 heads we don't say. The length or height based on the size of a human or animal head. तो अगर हम कभी लेंथ बताना चाहते हैं या हाइट बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं उससे हम उसके 2 हेड के बराबर मेरी हाइट है, तो वहां पे हम हेड्स लगाएंगे। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जब हम हाइट और लंबाई बताएंगे ना कि भाई मैं उसके 2 हेड के बराबर हूँ, तो वहां हेड्स लगेगा। तो ही इज 2 हेड्स टॉलर देन हिज सिस्टर। वो अपनी सिस्टर का जो हाइट है ना, दुगनी हाइट से भी ज्यादा वो बड़ा है, ये बताना चाह रहे हैं। तो हेड, तो वो सिस्टर को हेड, एक हेड कह रहा है। तो सिस्टर के जो हाइट, सिस्टर को हेड नहीं, मतलब सिस्टर की जो एक हाइट है उस पूरे चीज को वो एक हेड कह रहा है। तो ही इज 2 हेड्स, हिज हॉर्स वोन बाय अ हेड। लेकिन उसका जो, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज करें तो हिज हॉर्स, उसका जो घोड़ा है वो वन बाय हेड, वन बाय हेड मतलब वो दूसरे घोड़े से आगे रहा वो। यूजुअली प्लूरल द obverse side of coin that usually bears the representation of a person's head. Example, call heads और tails। तो जब हम सिक्के होता है ना, तो उसमें जो है ऊपर जो रहता है फिगर, या तो हेड होगा या टेल, तो हेड और टेल नहीं कहेंगे, हेड्स और टेल्स कहेंगे। सो नाउन विथ वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सी आयरन मतलब एक शब्द है जिसको सिंगुलर में कुछ और मीनिंग है, प्लूरल में कुछ और मीनिंग है, ऐसा भी हो सकता है। तो आयरन व्हेन इट इज इन सिंगुलर फॉर्म इट इज अ मेटल, बट व्हेन यू राइट एस आयरन्स, सो इट बिकम्स अ फीटर्स और चेन। चेन मतलब हथकड़ी, फीटर्स, आयरन्स। एब्यूज जो है, अक्सर हम जैसे कहते हैं ना, रॉन्ग यूज करते हैं, एब्यूज, गाली भी कहते हैं, डोंट एब्यूज हिम। अब्यूजेस जो है वहां पे अनजस्ट कस्टम, जो प्रैक्टिसेस, जो पुरानी अंधविश्वास जो हम है ना, उस चीज को एब्यूजेस का ये मतलब होता है। जो कस्टम, जो पारंपरिक चीजें चली आ रही है पुरानी, तो त्योहारों में काटना मारना, ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है। एडवाइस, सजेशन और काउंसिल। सिंगुलर, इफ व्हेन इट इज सिंगुलर देन इट इज अ सजेशन और हिज एडवाइस टू मी, तो दिस इज अ सजेशन और काउंसिल। और यही सेम सेम थिंग इन प्लूरल फॉर्म, इट इज अ इंफॉर्मेशन। दे दे लाइक देयर एडवाइस वाज वेरी 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 फ्रूटफुल। देयर एडवाइस वाज मीन्स जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया वो अल्टीमेट था। तो इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी है जो उन्होंने दिया। एयर व्हेन इट इज अ सिंगुलर देन इट इज अ एटमॉस्फेयर। और ईयर्स, ईयर्स मतलब इसे नहीं कहते हैं उन्होंने ईयर्स किया, मतलब आकाशवाणी द्वारा, या मतलब उन्होंने जो है ब्रॉडकास्ट किया, एयर्स किया। और वी कैन से शोई, ही इज अ वेरी शोई पर्सन। एयर्स, हिज फ्लैश करता है वो कि अपने शर्ट ब्रांडेड है एंड दिस एंड ऑल। कंपास, एक्सटेंड और रेंज, उसका जो कंपास है, उसका जो रेंज है, दिस सेज दैट उसकी जो सीमाएं हैं वो वहीं तक काम करता है। उसका कंपास इज लाइक टू दिस like Lucknow city only, so he cannot go beyond that. Compass is a V-shaped instrument for drawing circles. तो आप यूज किए होंगे ना 9, 10, 11, 12 में जो मैथमेटिक्स कंपास यूज करते हैं, कंपासेस उसको कहते हैं। कंटेंट, अ सब्सटेंस। सो in a singular form it is a substance, like what is the content of your app, okay. Contents a list of matter in a book, means many, matter in a book। good, benefit and advantage भी कहते हैं ना this, and goods, but it's a movable things, जो एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं ना उसको goods कहते हैं। so goods carrier होते हैं ना, movers, packers। तो फिजिक, मेडिसिन ओल्ड यूज है, पुराने जमाने में हम फिजिक कहते थे दवाइयों को। और फिजिक्स नेचुरल साइंस है, जो भौतिकी विज्ञान आप कहते हैं ना। क्वार्टर, अ फोर्थ पार्ट, एक चौथाई भाग को कहते हैं क्वार्टर, 1/4 पार्ट। एंड क्वार्टर्स, सो व्हेन यू गो टू द, यू टॉक टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना, सो सर माय टाइम इज, आई एम गोइंग टू माय क्वार्टर्स। तो उनके जो घर हैं उनको क्वार्टर्स, पुराने जो ब्रिटिश टाइम से दे यूज क्वार्टर्स, रेजिडेंस, स्टिल दे यूज क्वार्टर्स। सो एयरफोर्स में है, आप आर्मी में है, क्वार्टर्स कहेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो डिपार्टमेंट। रिस्पेक्ट, तो रिगार्ड है, सम्मान। रिस्पेक्ट्स देन कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है, पूरक हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। सैंड, जो फाइनली क्रश्ड रॉक, जो रॉक होता है ना उसको तोड़ देते हैं, तो दैट इज बिकम सैंड। एंड सैंड्स, जो डेजर्ट को कहते हैं। वाटर, अ लिक्विड है,
वाटर्स जो सी है, जो प्लूरल सेंस में सीज और ओशन को कहते हैं. नाउन विथ वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू इन प्लूरल. सिंगुलर लाइक कलर, ह्यूई, we say, like, but in plural form it is a hue is a flag of regiment also we say. Now custom is a habit in singular form, but customs like वो जो पारंपरिक होती है ना किसी समुदाय या कबीले का, तो कस्टम्स. टैक्स ऑन इंपोर्ट को भी कहते हैं कस्टम्स. ओके, so when anything you import from a foreign country, then government put tax on that. So that tax is specifically said as customs. So you have to give some money to the customs officer standing in at the airport. Effect is a result. असर कहते हैं, असरदार इसका effect. Effects result और property को कभी कहते हैं effects. Ground, earth और reason. What is the ground of your finding? तो जैसे आपने बोला कि आपका ग्राउंड क्या है बताने का, मतलब ये आपका क्या ग्राउंड है, किस आपका ग्राउंड क्या है, तो आप कहेंगे कि मेरा ग्राउंड सर मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर अ इंजीनियरिंग जॉब. तो रीजन ग्राउंड मीन्स कारण है. ग्राउंड्स, रीजन्स एंड इनक्लोज लैंड. ग्राउंड्स मीन्स इनक्लोज लैंड को कहते हैं, मीन्स लाइक एक स्टेडियम है, ग्राउंड्स कहेंगे वहाँ पे, वो ग्राउंड्स हो गया. तो इनक्लोज लैंड होता है, तो क्रिकेट खिलाड़ी जो है इनक्लोज ग्राउंड्स. इनक्लोज मीन्स बंधा हुआ, मतलब वो एक निर्धारित सीमा है, ग्राउंड्स में हो गया. मैनर, मोड और मेथड हो गया मीनिंग, बट मैनर्स, मेथड और करेक्ट बिहेवियर. मैनर इन सिंगुलर फॉर्म इट इज मेथड ऑफ डूइंग, इन व्हाट मैनर यू विल एग्जीक्यूट दिस जॉब. तो हम कहते हैं ना आप कैसे इसको करेंगे. मॉरल और लेसन. मॉरल्स जो है वो लेसन्स एज वेल एज मॉरल हैबिट्स को कहते हैं, जो आपका हैबिट होता है उसको कहते हैं. मॉरल मतलब सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. बेवकूफ़ी की तरह आप काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है ये सही है ये गलत है, तो उसके आधार पर जब आप काम करते हैं तो वो मॉरल कहलाता है. और जैसे कहते हैं मॉरल्स, तो उसकी मॉरल है मतलब उसकी अच्छी हैबिट है, वो कॉन्शियस को अपने कॉन्शियस को यूज करता है. पार्ट, पोर्शन को कहते हैं. पार्ट ऑफ दिस लेसन इज दिस. पार्ट्स, एबिलिटीज को कहते हैं. नंबर, न्यूमरल और नंबर्स क्वांटिटीज और सॉन्ग्स को कहते हैं. स्पेक्टिकल, अ साइट. व्हाट अ स्पेक्टिकल, मतलब साइट कितना बेहतरीन ये नज़ारा है, तो स्पेक्टिकल कहते हैं उसको. और स्पेक्टिकल्स ये जैसे चश्मे हैं, तो पेयर हो गया यहाँ पे ग्लासेस. दो में डिफरेंस है. स्पेक्टिकल सिंगुलर है तो वो एक क्या बेहतरीन नज़ारा है, स्पेक्टिकल हो गया. और स्पेक्टिकल्स प्लूरल में आ जाएगा आपका ग्लासेस. प्रीमाइस प्रोपोजिशन है, और प्रीमाइसेस जैसे हाउस एंड ग्राउंड्स. प्रीमाइसेस जैसे कहते हैं स्कूल के प्रीमाइसेस में ही रहना, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, बच्चों कहते हैं ना प्रीमाइसेस में रहना, प्लूरल फॉर्म हो गया. नाउन्स विद टू प्लूरल फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग. लाइक ब्रदर का हो गया ब्रदर्स, लाइक विद टू प्लूरल फॉर्म्स हैं, ब्रदर्स एंड ब्रेदरेन. ब्रदर्स जो हो गया बॉयज ऑफ मैन ऑफ द सेम पेरेंट्स, दे आर टू, दे आर ब्रदर्स. तो व्हेन वी से ना, मतलब एक ही अभिभावक माता पिता के वो बच्चे हैं. लाइक ब्रेदरन, BRETHREN, मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन ऑर्डर. तो कहते हैं ना मुस्लिम ब्रदरहुड, तो वो ब्रेदरन में आता है, मतलब एक ही रिलीजन के लोग हैं, मेंबर है. क्लोथ्स, ये सब प्लूरल है लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग है. तो क्लोथ्स जब हम यूज करते हैं, काइंड ऑफ पीस ऑफ क्लोथ हम यूज करेंगे. सिल्क का काइंड मतलब सिल्क, जैसे सिल्क पॉलिस्टर है, ये काइंड्स ऑफ क्लोथ्स में आ गया. पीसेस ऑफ क्लोथ्स कहेंगे कि जब ES लगाएंगे तो वो गारमेंट्स में आ जाएगा. तो गारमेंट्स में आपके सारे आ गए ना, मतलब पैंटलून्स, अभी आपको बताया था ना, ब्लूमर्स, दीज आर ऑल व्हाट शॉर्ट्स, दीज आर कम्स अंडर गारमेंट्स. तो पेयर हो जाते हैं उसमें. तो पेयर ऑफ जो भी पैंट्स, PNTS, जितने आ रहे हैं वो किस में, गारमेंट्स में आते हैं. तो क्लोथ्स, तो जब हम क्लोथ्स कहते हैं तो वो रिफर होता है, सारा गारमेंट रिफर हो जाता है. और CLOTHS होते हैं तो वो पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का एक टुकड़ा कह दिए ऐसे, या बहुत सारे टुकड़े हो गए तो क्लोथ्स आ गया, HS लग जाएगा, S लग जाएगा उसमें. डाई, DIE, डाई, तो ये हो गया डाइज, प्लूरल फॉर्म हो गया इसका. मेटल ब्लॉक यूज्ड फॉर प्रेसिंग और कटिंग मेटल, प्लास्टिक एटसेट्रा. एक मेटल ब्लॉक होता है जो उसको प्रेस करता है, तो आप देखे होंगे. और कटिंग मेटल. और DICE, डाइस, अ स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स. तो डाइस होता है ना, हम यूज करते हैं लूडो में डाइस, ठीक है, उसको कहते हैं. तो उस DICE में ये आ गया, डाइस में वो आ गया. नाउन एंडिंग इन ICS.
जैसे civics हो गया, ICS हो गया, and classics, economics, ethics, politics, physics, linguistics, mathematics, phonetics, semantics, statistics. These nouns used as the name of a science subject are considered singular. जब हम these nouns which end in ICS, when we used in the name as a name of science or subject, then it is a singular. So they are plural when they indicate qualities. तो वही चीज को जब आप refer करेंगे, indicate करेंगे, it's a subject or science, then name जब आप refer करेंगे उसका पूरे का, then it is a singular. बट जब इन्हीं चीजों का जब आप क्वालिटी करेंगे तो वो प्लूरल आएगा. जैसे मैथमेटिक्स रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस, तो हम क्या करें, मैथमेटिक्स को क्या चाहिए, हम क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिस रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस, तो वो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस की जो आवश्यकता है, या जो प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, वो मैथमेटिक्स कहलाता है. मैथमेटिक्स वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो कहेंगे मैथमेटिक्स. तो यहाँ साइंस के मतलब वो उसका नाम बता रहा है ना, सिंगुलर सेंस हुआ. लेकिन सेम द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर हैव इनोबल्ड मैनी, अब यहाँ क्वालिटी बता दिया तो क्लासिक्स हो गया. क्लासिक ऑफ तो लिटरेचर जो है को हमने लिखा प्लूरल फॉर्म में, द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर हैव इनोबल्ड मैनी. इनोबल्ड का मीनिंग है, मैं बता रहा हूँ, मीन्स गिव अ टाइटल टू समवन, मेक समवन अ मेंबर ऑफ द नोबिलिटी. तो उन्हें जैसे प्रतिष्ठित करना, मतलब उसको संभ्रांत, उनको ये शब्द है हिंदी में, दीज आर लाइक रिस्पेक्ट, फेमस. सो द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर हैव इनोबल्ड मैन. तो ये जो लिटरेचर की वजह से क्वालिटी बता रहा ना, ये लिटरेचर की वजह से जिन्होंने वर्ल्ड को लिटरेचर दिया है, उनकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ी है समाज में. तो शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद, ये लोग ने दिया प्रतिष्ठा, तो यहाँ क्वालिटी आ जाता है. तो क्लासिक्स ऑफ, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है. तो लाइक कन्फर डिग्निटी और ऑनर अपॉन, लाइक सिनोनिमस डिग्निटी इज अ एग्जांपल, ही वाज डिग्निफाइड विद अ टाइटल, तो उसको एक टाइटल मिला. नोट एथलेटिक्स, तो ICS लगा एथलेटिक्स, इट इज यूजुअली यूज्ड इन अ सिंगुलर सेंस टू मीन फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स like running, jumping. So athletics का मतलब, whenever you listen the word athletics, what does it come to your mind? Like running, jumping, physical exercise. Okay, so it is used in a singular sense. Okay, even the form is plural. You see, so she has no interest. She has no interest in athletics. So it is used in a singular sense. Gymnastics. Now it is used in a plural sense to denote forms of exercise. So different forms of exercise हैं जिम्नास्ट में. और देखते हैं ऐसे चलते कूदते हैं, फिर ऊपर ऐसे राउंड करेंगे. There are many forms of gymnastics. So gymnastics is a plural form. Gymnastics helps develop our muscles. So gymnasts क्या करता है, वो हमारे muscles को develop करता है. So gymnastics helps. We are using helps. Okay. So acrobatics, it is used in singular sense to denote the art of performing acrobatics. So it is used in plural sense when it means acrobatic qualities. So when it comes to denote the art of performing, we are using singular, and when it is used in a sense of qualities, then it is a plural. So now see, acrobatics is not easy to learn. So here it gives sense to denote the art of performing. Okay, it is not easy to learn. Art, it indicates. His acrobatics are praised everywhere. So qualities, here we use plural. It's quite, you have to be very sincere in understanding these words, and you have to memorize this concept. Okay. Tactis, it can be used with a singular or plural verb. So good tactis, tactics, Raniti. Tactics means Raniti in English. Good tactics calls for a surprise attack. So nouns ending in es. So here is example: series, species. So they have the same form in both regular and plural. So we cannot change the form. Series will be always series, species will be always species. Okay. This is
the same species of animal. In singular form you use this is okay, but in plural form, see, among the many species of plant life, few specimens are actually flourishing. So this is a plural form. Now, numeral plus noun. It in a construction like 5-year plan, the noun following the numeral is always singular. So any numeral is there. So 5-year plan. 5-year is a numeral and plan is a noun. It will be always singular. You cannot make it plural. Okay. So a 6-month old baby, not babies. 6-month old baby. So numeral is before old baby. A 3-man committee. Again, so we cannot make man as a plural. Means you say numeral plus noun plus noun. So a 3 is a numeral plus man and committee both are noun. And all party meeting. So we don't say this is a 5 years plan. Wrong. This is a 5-year plan. Okay. Numeral is never in a plural form. I have a 10 rupees. No, wrong it is. I have a 10 rupee note. Okay. So one of plus noun. So in this construction, the noun is always plural. So before that, I told you in that construction, numeral plus noun, it is always singular. And here it is noun. In this construction, it is always plural. How it is? One of plus noun. So when a one of plus noun comes, it is always plural. So he is one of the tallest boys. So here noun become plural. This is one of the best books. So book become plural. So whenever of comes, the following noun will become always plural. Noun plus fraction. So there are two ways in which one can refer to a fraction, like 2.5 rupees. So here it becomes plural. So other way we can write 2 rupees and a half. So 1.5 years ago. Okay. So whenever fraction goes, so try to always the last level will be in this plural form. Noun will be in plural form. So 1.5 years ago, a year and a half ago, both forms are acceptable. Nouns denoting material. So जो noun material को denote करता है बताता है, जैसे noun denoting materials that are used in making building something are usually in the singular form. तो जो noun building इसके द्वारा building बना है तो वो क्या होगा? Always that will be in a singular form. A house is made up of house is made of brick or stone. We cannot write bricks or stones. जो भी building material जो है ना use हम जब कहते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा it will be in a singular form. This window is made of glass or wood, not glasses or woods. तो वो किससे बना है? तो जब ऐसी बात आती है ना तो वहां पे यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करेंगे. A shirt is made of cloth, or a shirt is made of silk, not clothes. Plural personal names, proper nouns. So very interesting this is. A plural personal names means persons like. तो कहते हैं ना हम लोग अक्सर क्लास में आप पढ़ते होंगे तो कहते होंगे ये गांधी है, ये गांधी, अरे ये तेंदुलकर है. तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन बट वी यूज्ड हिम फॉर हिम आल्सो, like the players think they are Tendulkars. So a plural personal name has the same meaning as a and plus personal name. He thinks he is a Tendulkar. तो हम उससे relate करते हैं. Appropriate noun must be used even in common speech in order to be easily comprehensible. Coining a word to show one's ingenuity may result in an appalling display of ignorance, the basic principle of grammar. ये क्या बता रहा है कि कहीं हम लोग गलत यूज करते हैं. इलिमिटेड कॉइनेजेस लाइक दिस हम लोग बातचीत में अक्सर गलतियां करते हैं. जैसे करेक्ट ग्रामर नहीं, जैसे ही इज अ गुड कुकर, इट्स अ रॉन्ग. करेक्ट इज ही इज अ गुड कुक. सो ही इज अ कॉपियर, इट्स रॉन्ग, ही इज अ कॉपिस्ट. सो राइट योर आंसर इन द आंसर्स इन द कॉपी is wrong. We should write your answers in the
copybook or exercise book. So he is a cheater. This is wrong. He is a cheat. She loves doctory. Wrong. She loves medical profession. He does not like teachery as a profession. Wrong. He does not like teaching as a profession. A वॉच हैज टू नीडल्स. हम लोग कहते हैं ना वॉच, जो ये घड़ी होता है ना, उसमें वॉच में बीच में जो दो सुइयां, वो गलत है. एक्चुअली अ वॉच हैज टू हैंड्स. वो हैंड्स कहा जाता है. अक्सर हम लोग मिस्टेक करते हैं. द होल ऑफ अ नीडल इज स्मॉल. फिर गलत कहते हैं. द होल ऑफ अ नीडल नहीं है, द आई ऑफ अ नीडल इज स्मॉल. तो जो सुई होता है उसको आई कहते हैं. उसके जो होल को होल नहीं कहते हैं. देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बर्थ. देयर इज नो रूम इन दिस बर्थ. There is plenty of place for improvement in this essay. Wrong. There is plenty of room कहते हैं. He has no rupees on. Wrong. He has no money on him. मतलब उसके कोई उधारी नहीं है उसके ऊपर. She is a sportswoman. Wrong. She is sport woman लिखा है, गलत है. She is a sports woman. He is a salesman. He is a townsman. Statesman. राजनेता. Stateman नहीं. बोट्समैन. शी इज माई कजन. कजन सिस्टर है. शीज तो लगा ही दिया आपने, उसके बारे में कह रहे हैं, तो शी इज माई कजन. बस सिस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है. शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस. बोर्डिंग नहीं कहेंगे. शी इज एट बोर्डिंग, तो शी इज एट बोर्डिंग स्कूल कहेंगे. ही हैज टू पे ₹300 a week for boarding and lodging. This is wrong. He has to pay 300 for a week for board and lodging. So both in boarding, ing we cannot put. Okay. Give me a piece of blotting. Wrong. This give me a piece of blotting paper. We cannot live without fooding and drinking. So we cannot live without food and drink. This scheme is meant for upliftment of the poor. गरीब लोग को उठाने के लिए स्कीम है. तो this scheme is meant for the uplift of the poor. He has applied for a lecturership. Not lecturership, lectureship. What's your good name? What's your name? Oh, hope so. This is a quite tough subject, so it will take time for you to please memorize, and 2-3 times, then only you will come to a concept. Okay. Thank you very much for watching my video, and please subscribe and please like if you really understood my concept. Okay. And if you have any problems, please write to me on my YouTube channel. Thank you very much.